आज हम सबके बीच इनोवेटर्स की कमी नहीं है, आइडियाज की कमी नहीं है। आपके आसपास कोई ग्रासरूट इनोवेटर्स हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी चुनौती का कुछ इनोवेटिव हल निकाला हो, आप उसकी स्टोरीज पूरे देश के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। बात अगर सेना की करें तो सेना में मौजूद अफसर जवान बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो कौन सी तकनीक है, वो कौन से हथियार है जो उन्हें और ताकतवर बना सकते हैं। और यह सुनना अपने आप में और भी रोचक लगता है कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो खुद अपनी तकनीक को नया आयाम दे रहे हैं, जिसे भारतीय सेना ने नाम दिया है इन्नो योद्धा का। ऐसे तो यह कार्यक्रम हर साल होता है, पर इस बार कुछ और खास तकनीक को लेकर अलग रहा इन्नो योद्धा 2024-25। भारतीय सेना ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में इन्नो योद्धा 2024-25 का आयोजन किया। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें सेना अपने इनोवेशन और नए विचारों की पहचान करती है। इन्नो योद्धा का उद्देश्य सेना की परिचालन, रसद और प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाना और मौजूदा कमियों को दूर करना है। भारतीय सेना के सामने कई तरह की परिचालन चुनौतियां होती हैं, जो मुश्किल इलाके, बदलते मौसम और दुश्मन के खतरों से और जटिल हो जाती हैं। सेना अपने सैनिकों के अनुभव की गई इन चुनौतियों का हल ढूंढने के लिए इन हाउस नवाचार या इनोवेशन को प्रोत्साहित करती है। ये सैनिक अपने जुनून, पेशेवर कौशल और तकनीकी समझ का इस्तेमाल करके इन समस्याओं के लिए व्यवहारिक समाधान विकसित करते हैं। Achievements: the number of innovations which were fielded ranged from about 66 to 80 in the last 4 years, and out of which 37 of them have been actually completed and implemented at various levels within the Indian Army. 36 of them are at present being upscaled by the base workshop group or through our various R&D or ATB projects. 10 of them were merged with the ongoing projects, and 8 formal and informal TOTs to industry have been also done. As a result, even 25 IPRs have been filed for these innovations. Now, this year, what you have just witnessed now is actually a result of the competitions at various levels, which started nearly about 4 to 5 months back. Right from the innovations being fielded at the unit level, thereafter competitions at formation level, and finally by the commands, who then had projected to us the various number of innovations as shown here on the pie chart from each command. And then these went through a screening committee, which consisted of reps of all directorates, and not only the line directors, but also MO, SP, IS, EME, so that there is a holistic analysis of all these innovations. And if we see domain-wise, the 4 major domains in which these came in were related to the equipment maintenance, software, AI-based projects, and the aerial platforms. So more than 40% of innovations were in these categories, and that is what shows actually that how the field army is aligned with the requirements of tomorrow's operations. इन्नो योद्धा 2024-25 एक प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें सैनिकों को नए विचार और समाधान पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। चयनित नवाचारों को अनुसंधान और विकास यानी कि R&D, विकास, डिजाइन और विकास DND, सेना प्रौद्योगिकी बोर्ड ATB परियोजनाओं और बेस वर्कशॉप के माध्यम से सुधार और उन्नति के लिए
आगे बढ़ाया जाता है। इन नवाचारों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार भी प्राप्त किए जाते हैं। सफल उन्नति और मजबूती के बाद इन तकनीकों को औद्योगिक स्तर पर उत्पादन के लिए निजी उद्योगों को सौंप दिया जाता है ताकि भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा किया जा सके। यह पहल सेना के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूत करती है। The scoring by the screening committee was done in a very, very objective manner. And what this year we also introduced was a recommendation specifically on every innovation by the screening committee, whether it should be taken forward for production or not. And if to be taken forward, at what level, whether at the Indian Army level or at the command level. So as a result, there were about 39 of these innovations which were shortlisted by the screening committee, and thereafter they were shared with the line directorates, and after adequate amount of deliberations, these 14 have been shortlisted as priority 1 innovations to be taken forward. And now they will be taken forward, basically 2 immediate actions about the IPR and upscaling them, and this upscaling will be done either through the command IR&D funds or through the ATB funds. And thereafter, once we go on to the production and then their procurement, the preferable route is through Army Commander Special Financial Powers, because it does not require scaling or any other funds of that nature at the command level. Whereas, or even in the capital procurement, during emergency procurement, we are exploring that option. But otherwise, then it requires scaling, which becomes a long drawn process. So for fastest induction, recommendation is to induct them through the command, various funds available at the commands. So way ahead, as immediate action, so that we can progress on these identified 14 innovations. These are the timelines given for various actions to be undertaken, so that within about next 4 months, we should have actually started the various upscaling projects or taken them to a logical conclusion. So I would request that if we can be given monthly progress reports by all concerned agencies, so that they can be monitored, and wherever any intervention is required, that can also be done and facilitated at our level. इस साल भारतीय सेना के क्षेत्रों से 75 इनोवेशन का चयन किया गया, जो यूनिट स्तर से लेकर गठन स्तर और फिर संबंधित कमांड मुख्यालय तक पहुंचे। इनमें से 22 बेहतरीन नवाचारों को कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया और सेना प्रमुख ने उन नवाचारों को सम्मानित भी किया। इन नवाचारों को सेना डिजाइन ब्यूरो के तहत उत्पादन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि यह क्षेत्रीय संरचनाओं की जरूरतों को पूरा कर सके। सेना प्रमुख ने इनोवेटर्स की रचनात्मकता और नवीन सोच की सराहना की और सभी सैनिकों से समस्या समाधान के लिए आलोचनात्मक सोच और नवाचार अपनाने की बात कही। देखा जाए तो हाल के संघर्षों ने साबित किया है कि नवाचार केवल अब एक शब्द नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है। यह वही चिंगारी है जो प्रगति को आगे बढ़ाती है और भविष्य को आकार देती है। सेना की कड़ी मेहनत और समर्पण ने इन विचारों को इस प्रतियोगिता तक पहुंचाया है, जिसके बदौलत हम जान पा रहे हैं कि क्या है इन्नो योद्धा। सेना प्रमुख ने इस खास मौके पर कहा कि प्रत्येक विचार के पीछे कई घंटे की सोच, विचार, शोध और परिश्रम छिपे होते हैं, जो सेना और देश के प्रति उनके योगदान की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। पिछले 4 सालों में इन्नो योद्धा ने कई महत्वपूर्ण नवाचारों को बढ़ावा दिया है। इस दौरान 26 IPR दर्ज हुए हैं और 21 इनोवेशन सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। साथ ही 3 नवाचारों की तकनीक निजी उद्योगों को सौंपा गया है। इनमें FC टेक की विकसित की गई एक्सप्लोडर और रेड काइट डिजिटल टेक की बनाई गई नया अग्नि अस्त्र शामिल है, जिनमें से एक्सप्लोडर को जून 2024 में लॉन्च किया गया और अग्नि अस्त्र का अनावरण 12 अक्टूबर 2024 को सेना कमांडर के सम्मेलन में हुआ। तीसरा नवाचार विद्युत रक्षक IS ट्रेडिंग कंपनी को सौंपा गया है। मैं कर्नल प्रदीप यादव हूँ। मैं कमांडिंग ऑफिसर मैं कर्नल प्रदीप यादव हूँ, कमांडिंग ऑफिसर 151 AD रेजिमेंट SP छम। अभी आपके सामने ये जो आइडिया इनोवेशन जो रखा गया है, इसका नाम खड़गा है।
खड़गा का फुल फॉर्म है कामिकाजी हाईली मैन्यूवर असोल्ट एंड रेकी गाइडेड एरो सिस्टम। ये एक एरो सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास ISR के लिए एक 5 मेगापिक्सल कैमरा, GPS नेविगेशन और हमारे पास एक एक्सप्लोजिव पेलोड है। तो ये इंड सर्वेलेंस के साथ साथ कामिकाजी अटैक की भी क्षमता रखता है। जो कैमरे का जो फीड है वो जो फ्लायर है उसको VR सेट के ऊपर मिलता है और इसकी मदद से वो कैमरा को देखता है और अपने कंट्रोलर से इसको गाइड करता है एनिमी के टारगेट सिस्टम के ऊपर। टारगेट सिस्टम पे पेलोड को इनिशिएट करने के 2 तरीके हैं। एक इम्पैक्ट से इसको पेलोड से इनिशिएट किया जाता है और साथ में ही एक स्विच के द्वारा ये अपने कंट्रोलर से भी इसको एक्सप्लोड किया जा सकता है। इसका जो वेट है वो केवल 2 kg का है और यहाँ पे एक्सप्लोजिव लगा हुआ 700 ग्राम्स का एक्सप्लोजिव है। ये 1.5 किलोमीटर तक की रेकी करने की क्षमता रखता है और ये GPS नेविगेशन के थ्रू इसको पूरा जो कंट्रोलर जो है उससे कंट्रोल किया जाता है। इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बहुत ही कम है और दुश्मन का रडार इसको नहीं पकड़ पाता है। और ये एक फ्रीक्वेंसी होपिंग सिस्टम है जिसमें कि जैमिंग का भी बहुत कम चांसेस है जैम होने के भी। तो ये एक और इसका जो बेस्ट वो है द कॉस्ट इज़ वेरी लेस, दैट मीन 30,000 रुपीज़ में ये पूरा सिस्टम आपको तैयार करके मिलता है। तो यही खड़गा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यह प्रयास भारतीय सेना को और सशक्त बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन्नो योद्धा 2024-25 कार्यक्रम ने भारतीय सेना की तकनीकी क्षमताओं में एक नई क्रांति ला दी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सेना ने अपने भीतर से विकसित की गई 75 नई तकनीकों के बदौलत देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय सेना की तकनीकी क्रांति। इन तकनीकों को कई स्तर पर कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद चुना जाता है। 22 सबसे बेहतरीन तकनीकों को कार्यक्रम में दिखाया गया। अब इन तकनीकों को आर्मी डिजाइन ब्यूरो यानी कि ADB के मार्गदर्शन में उत्पादन के लिए तैयार किया जाएगा। यह पहल सेना की आत्मनिर्भरता बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेना प्रमुख ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया और इनोवेटर्स के प्रयासों की सराहना की। पिछले 4 सालों में इन्नो योद्धा के तहत कई पेटेंट फाइल किए गए हैं और कई तकनीकें पूरी तरह से विकसित हुई हैं। ये बाज अटैक ड्रोन है जिसकी जो एक रॉकेट लॉन्चर को फायर करने की क्षमता रखता है। रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ ये बाकी वेपन्स भी फायर कर सकता है, जैसे कि एक ऑटोमेटिक राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर और साथ ही में मोटार बॉम्ब्स या एक्सप्लोजिव्स को भी एक डेजिग्नेटेड टारगेट पे ड्रॉप कर सकता है। इसकी जो रेंज है वो करीब 5 किलोमीटर है एक हैंडहेल्ड ट्रांसमीटर के साथ, और जिसको हम 10 किलोमीटर तक बढ़ा सकते हैं। इसकी पेलोड कैपेसिटी करीब 80 किलोग्राम है प्लेन्स में और 45 किलोग्राम यानी 45 किलोग्राम हाई ऑल्टीट्यूड में। हमने इसे 14,000 फीट पे भी टेस्ट किया है सिक्किम के इलाके में। इसकी जो स्पीड है वो करीब 12 मीटर पर सेकंड की है, जो कि हमें लगभग 1 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसका फ़ायदा यह है कि ये जल्दी से जाकर दुश्मन के इलाके में टारगेट को एक्वायर करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है और तुरंत वहाँ से निकल सकता है बिना आइडेंटिफाई किए। किसी भी तरह के टेरेन में और किसी भी तरह के ऑपरेशन में ये हमारी ग्राउंड फोर्सेस को एक एरियल सपोर्ट देने की क्षमता रखता है। निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करके नई तकनीकों को उत्पादन के लिए सौंपा गया है। यह कार्यक्रम सेना की ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने, स्वदेशी तकनीक विकसित करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इन्नो योद्धा जैसे मंच सैनिकों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं। यह कार्यक्रम सेना को तकनीकी रूप से सशक्त बना रहा है। इन नई तकनीकों से देश की सुरक्षा और मजबूत होगी। ये इसका हैंडहेल्ड ट्रांसमीटर है जिसमें हमने एक कैमरा इसकी साइड के साथ अलाइन किया है और उस कैमरे का जो फोटोग्राफ है वो इसके स्क्रीन पे दिखाई देता है। यहाँ पर एक क्रॉसहेयर है
जो क्रॉस हेयर हम टारगेट से अलाइन करते हैं और फिर एक सिर्फ बटन की मदद से रिमोटली इस वेपन को हम फायर कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं कि ट्रांसमीटर के में जो स्क्रीन है उसी की मदद से हम इसमें एम कर सकते हैं, जो कि हमारा कैमरा साइट के साथ हमने अलाइन कर रखा है। एक बार टारगेट एक्वायर होने पर रिमोटली बटन दबाकर रॉकेट लॉन्चर को फायर किया जा सकता है। ये प्लेटफॉर्म इतना स्टेबल है कि एक आरएल के राउंड के फायर होने पर भी बिल्कुल भी हिलता नहीं है और स्टेबिलिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ टारगेट को एंगेज कर सकता है। भारतीय सेना की इनो योद्धा पहल के तहत कुछ प्रमुख नवाचार इस प्रकार है। हाइड्रोलिक रूप से नियंत्रित रैंप, यह मैनुअल सिस्टम को हाइड्रोलिक सिस्टम से बदलता है, जिससे टैंक लोडिंग और अनलोडिंग को आसान और सुरक्षित बनाया जाता है। फिनिक्स फुट, यह एक स्वदेशी कृत्रिम पैर है जो शरीर के कई हिस्सों और इलाकों के मुताबिक ढल जाता है और जोड़ों पर दबाव कम पड़ता है। उन्नत बाढ़ निगरानी प्रणाली, यह प्रणाली LIDAR और GSM का उपयोग करती है, जिसमें बाढ़ की स्थिति का वास्तविक समय में पता चल जाता है और तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। बाज अटैक ड्रोन, यह ड्रोन एंटी टैंक निगरानी और रसद संचालन के लिए काम करती है। इसकी रेंज 20 किलोमीटर और पेलोड क्षमता 50 किलोग्राम है। ये तीव्र अटैक सिस्टम है। इसमें स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, जिसमें 20 ड्रोन तक स्वॉर्म बनाया जा सकता है। इन ड्रोन्स की कैपेबिलिटी है कि ये सर्वेलेंस और रेकी मिशन पे जा सकते हैं, टारगेट्स डिटेक्ट कर सकते हैं और उन टारगेट्स के कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करके दूसरे ड्रोन्स को पास कर सकते हैं। जब दूसरे ड्रोन्स को कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं तो वो उन टारगेट्स को एंगेज करने के लिए कामिकाज़े एक्शन कर सकते हैं। सो इन ड्रोन्स के लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया है जो खुद से डेवलप किया गया है, आर्मी का इंडिजिनस है। एंड ये ड्रोन्स भी खुद ही असेंबल किए गए हैं एंड ऑफ द शेल्फ कैपेबिलिटी विद 1 kg पेलोड इन पे कैरी किया जा सकता है। तो इन ड्रोन्स में 4 मोटर लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये क्वाडकॉप्टर है, 4 रोटर्स के साथ इनका एक ब्रेन ऑफ द ड्रोन इज कॉल्ड द फ्लाइट कंट्रोलर। तो ये फ्लाइट कंट्रोलर इसका फ्लाइंग कैपेबिलिटी आइडेंटिफाई करता है और इन मोटर्स को इंस्ट्रक्शन पास करता है कि ये कैसे मैन्यूवर करेंगे। इसमें एक GPS मॉड्यूल लगा हुआ है जो इसकी लोकेशन बताता है और फ्लाइट स्टेबिलिटी के लिए जायरोस्कोप इसमें फिट है। इसका बैटरी लाइफ टाइम 30 to 40 मिनट्स ऑफ फ्लाइट टाइम है और ट्रांसमीटर रिसीवर जो इसको ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से कम्युनिकेट करने के लिए मदद करता है। इसके साथ इसमें एक एप्लीकेशन प्रोग्राम किया गया है जिससे इसको कमांड एंड कंट्रोल पास किया जा सकता है, जो कि आप पीछे यहाँ टीवी में देख सकते हैं। रैपिड कंस्ट्रक्शन रूबिक पीढ़ी, यह हल्के बुलेट प्रूफ प्री फैब्रिकेटेड ब्लॉक्स का इस्तेमाल करता है, जिससे रक्षात्मक संरचनाओं को जल्दी से बनाया जा सकता है और रसद का बोझ कम होता है। नव AI, यह एक AI प्रणाली है जो हवाई वस्तुओं की पहचान में मदद करती है और विमान की पहचान तेज और सही तरीके से करती है। ई-सैटविक और ई-सैमरविक, ये स्वचालित वाहन इग्निशन सिस्टम है जो ऊंची पहाड़ियों या कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वेपन सिस्टम रखा हुआ है, जिसमें कि मेन वेपन सिस्टम एक ट्राइपॉड के ऊपर है जो कि पूरा रोबोटिक है। इसमें डे कैमरा, नाइट कैमरा, LRF एंड GPS इस तरह के कई सेंसरों से ये लेस है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक और सेकेंडरी कैमरा है जो कि सेम सिस्टम है लेकिन वेपन नहीं है। अगर इस तरह के आर्टिफिशियल वेपन सिस्टम के सामने टारगेट झाड़ियों के पीछे छुप जाता है तो ये सिस्टम इनफेक्टिव हो जाता है। उसी को कारगर करने के लिए हमने ये सेकेंडरी ट्राइपॉड सिस्टम बनाया है जो कि टारगेट को दूसरे एंगल से देखकर और उसका कोऑर्डिनेट चेंज कर मेन वेपन को फायर करने के लिए इनेबल करता है। इसको ट्रेन करने के लिए हमने 3 मोड में डिवाइड किया है। एक मैनुअल मोड जिससे सिर्फ जॉयस्टिक से काम हो सकता है, दूसरा मोड जिसमें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके टारगेट को एंगेज किया जा सकता है बाय ऑपरेटर ट्रिगर प्रेस करेगा, तीसरे मोड में ये फुली ऑटोमेटिक मोड में चल सकता है। साथ ही साथ इसमें AI जो जनरेट किया है उसके लिए हमने 1.5 लाख इमेजेस पे इसको ट्रेन किया है जो कि ह्यूमन टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। स्प्रिंट, यह GPS से काम करने वाले स्थानों में नेविगेशन के लिए एक सिस्टम है जो भारत के नैविक और अन्य GNSS उपग्रहों का उपयोग करता है। मोबाइल रिएक्टिव माइन सिस्टम यानी कि MRMS,
यह ड्रोन द्वारा तैनात एक एंटी टैंक माइन है जो दुश्मन के वाहनों को अपने आप निशाना बनाती है। प्रतिलेख: यह एक AI आधारित सुरक्षित ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम है जो सैन्य बैठकों के दौरान डेटा की सुरक्षा और सटीकता को सुनिश्चित करता है। इन्नो योद्धा कार्यक्रम भारतीय सेना की एक सराहनीय पहल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सेना न केवल अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ा रही है बल्कि देश की सुरक्षा को भी मजबूत कर रही है। यह कार्यक्रम अन्य सशस्त्र बलों के लिए भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है।